वेरी गुड मॉर्निंग। कल अपन लोग क्या कंप्लीट कर लिया था, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द डिफेंस। ओके, वो सब सारी बातें कर लिए थे हम, इंक्लूडिंग ऑल द मिसाइल्स, सबमरीन्स, ओके, सम एल सी एस, सम एल सी एच, फाइन। एंड टुडे टुडे क्या मतलब, हमने कल ही स्टार्ट कर लिया था। वी हैव जस्ट स्टार्टेड अवर द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फाइन। एंड इन द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपको पता चला कि व्हाट इज़ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी and how can we identify how can we distinguish that, what actually not distinguish, how can we define the nuclear technology and how the nuclear technology is beneficial for us। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको रिव्यू लेते हुए चलते हैं। वी आर जस्ट डिस्कस अबाउट दैट द isotopes, okay, and especially which isotopes? The radioactive isotopes, clear? Okay, which isotopes? Radioactive isotopes. That means, firstly, what are the isotopes? The isotopes are those, ठीक है, which atomic number is same but atomic masses are the different। Okay, atomic numbers are the same, clear? And for examples we have discussed, right? Carbon 12, carbon 13 and carbon 14, okay. Not every time all the isotopes are the radioactive nature, okay. However, some specific type of isotopes are the radioactive in nature. That means radioactives, you can consider that radioactive that which emitted the radioactive radiations including the alpha, beta and the gamma. Actually, these isotopes are very useful for the energy production purpose, okay, energy production purpose. Apart from the energy production, these are also beneficial for other purposes, okay, other purposes, like in the medical field, in the agriculture field, okay, in the agriculture field, in the medical field and in the industrial sector, these isotopes are very useful, okay। और अगर हम बात करें तो आज इंडिया, ओके, इंडिया इज एक्चुअली ग्लोबली एक्नॉलेज एज द वन ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज इन द न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम, you can say the nuclear technology, okay। And by use of the, by the different use of the isotopes, especially the radioactive isotopes, these isotopes are very beneficial and there is a vast socio-economic benefits of these radioactive isotopes, clear? Okay, we have just discussed about the two types of the reactions in which we found that there is two types of reaction. The first one was the nuclear fission reaction, okay, and second one is the nuclear fusion reaction, okay। Fission means to break down, okay, and fusion means to conjugate by the addition of one, by the addition of two small nucleus, a large nucleus, you can say a greater nucleus is formed, and which this reaction is considered as the nuclear fusion. And we know that in the nuclear fusion reaction there is a vast energy emission, energy production, you can say the infinite energy production, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा था द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन was the
hydrogen bomb. Hydrogen bomb. Clear? And in the nuclear fission, we just discussed that there is two types of the nuclear fission reaction: the controlled chain reaction and the uncontrolled chain reaction. In the controlled chain reaction, we have discussed about the nuclear reactor. Okay, in which, why this is called the controlled chain reaction? Because in this types of the reactions, we are just controlling the bombarding of the neutrons. Okay, by absorbing the produced neutrons in a reaction, we are just allow some numbers, or you can say a single numbers of neutron to proceed the reaction further. Okay, that means कि हमने उसमें क्या किया कि अगर 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, तो वी आर जस्ट what we are just establish a mechanism, or just establish a establish a absorber, okay, which is actually using for the absorbing, for the absorption of the neutron. ठीक है, इतनी बात आई थी क्लियर में? ओके. An uncontrolled nuclear fission reaction considered as the atomic bomb. Okay, atomic bomb. And you know very well that atomic bomb is most, you can say, very disastrous weapons, or very disastrous armament. And today, in today's today's era, when we are just looking to maintain the sovereignty, the integrity and the border of our nation, okay, तो वहाँ पे ये एटॉमिक एनर्जी, और यू कैन से एटॉमिक बम की बात होती है. ओके, एक्चुअली if we are just talking about what is the India's nuclear research program, okay, which is also known as the NRP. NRP, this is the nuclear research program. Actually, when we are just talking about the nuclear research program of India, ऐसे देखो, NRP of India. NRP here stand for the nuclear research program. ठीक है, it's okay, clear? Okay. So if you are just talking in reference of India, so the aims of the NRP, or you can say the India's NRP aims to develop and utilize the nuclear energy to develop, क्या है, दिस इज द एक्चुअली मूल मंत्र ये इसका, किसका, इंडिया न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम का, टू डेवलप एंड यूटिलाइज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर peaceful purposes. Pause. For peaceful purposes. Actually, this is the motive of India's nuclear program. Okay. And peaceful purposes like such as power generation. Okay. The peaceful purposes such as power generation, or you can say application in agriculture, in medical science, or in industries also, in industries. So this is the main aim
of the India's nuclear research program. ठीक है. एंड जैसा मैंने पहले बताया कि टुडे इंडिया इज एक्नॉलेज एज द वन ऑफ द advanced country, one of the most advanced country in the nuclear research program. We have just tested in the 1998, क्या हमने laughing Buddha, okay, there was a Pokhran test. India is actually tested the five to six, I think, nuclear bomb at a time. ठीक है, हमने क्या किया था, एक बार में 5 से 6 एक सीक्वेंशियल टेस्ट किया था. ओके, कैसा टेस्ट था? सीक्वल टेस्ट. फाइन. बट देयर वाज नथिंग इन आवर माइंड दैट वी आर जस्ट प्रूविंग आवर सेल्फ टू एस्टैब्लिश एज अ न्यूक्लियर नेशन. ऐसा हमारे मूड में, हमारे माइंड में ऐसा कुछ. ठीक है. इंडिया वॉज एक्चुअली टेस्टेड दैट न्यूक्लियर बॉम्ब टू मेंटेन द सॉवरेंटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. ठीक है. वाई? बिकॉज ऑफ आवर नेबर न्यूक्लियर कंट्री. ओके, हमारे जो पड़ोस में जो देश हैं वो कैसे हैं? एक न्यूक्लियर कंट्री. So we have to maintain our sovereignty, we have to maintain our integrity. For those, we have just tested the Laughing Buddha in the 1998 at Pokhran, Rajasthan. ठीक है, तो उसलिए हमने क्या किया था? टेस्ट किया था. ठीक है. ओके. So nuclear armament has not been the thrust area of India's nuclear program. Never. हमें कभी ये नहीं था कि हमें एक क्या करना है, न्यूक्लियर आर्मामेंट डेवलप करना है. नो डाउट एंड वेरी कॉन्फिडेंटली वी आर जस्ट सेइंग दैट टुडे वी आर द न्यूक्लियर पावर कंट्री. यस वी आर. बट हमारे माइंड में कभी ऐसा नहीं था कि द न्यूक्लियर आर्मामेंट वॉज नेवर, यू कैन से द न्यूक्लियर आर्मामेंट हैज नॉट बीन the thrust area of India's nuclear program. Okay, हमने कभी भी केवल आर्मामेंट्स में काम नहीं किया. And today India is a consistent proponent of the general and complete global nuclear disarmament. ठीक है, that means consistent proponent. That means India is always talking about the complete nuclear disarmament. And if any treaties, any memorandum of understanding, or you can say any deal. ठीक है, अगर ऐसे कोई भी डील, ऐसी भी कोई भी ट्रीटी, ऐसी कोई भी हमारी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, विच डू नॉट सपोर्ट द कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, सो इंडिया नेवर साइन दोज टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट. ठीक है. अगर कोई भी ऐसी ट्रीटी, कोई भी ऐसी एमओयूज, ठीक है, कोई भी ऐसी डॉक्ट्रिन विच इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बट डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, तो इंडिया नेवर गोज टू साइन ऑन दिस. कभी नहीं जाएगा वो. इंडिया कभी भी साइन नहीं करेगा अगर कोई भी डॉक्ट्रिन या ट्रीटी उसको कंप्लीट डिसआर्मामेंट के लिए अगर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस को फॉलो करती है. डिस्क्रिमिनेटरी लाइक करेंगे बात अभी व्हेन वी विल टॉक अबाउट द एनपीटी एंड द सीटीबीटी. ठीक है, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, एनपीटी, सीटीबीटी. तो हम उसमें बात करेंगे कि वाई इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी कंट्री ऑफ द ट्रीटीज लाइक एनपीटी एंड सीटी. ठीक है, क्यों नहीं है? ओके. तो इंडिया इज ऑलवेज स्टैंड फॉर द कंप्लीट डिसआर्मामेंट. ठीक है. अच्छा, एक चीज आप लोग ये चीज ध्यान रखिए कि एनआरपी, यू कैन से द
इंडियाज एनआरपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ, इस समय मेंस का पेपर चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और लैंग्वेज का पेपर और ऑप्शनल का पेपर बचा हुआ है, फाइन। तो अभी तो जितने पेपर हो चुके हैं, अब सबने क्वेश्चंस देखे होंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को उसमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। ये एक नेचुरल चीज़ है। जिनको नहीं आया वो ऐसा मत समझें कि उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। अभी आप स्टार्ट किए हो, जस्ट यू हैव जस्ट स्टार्टेड ना, तो उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, और जब आप करते रहोगे ना, कंप्लीट करते रहोगे चीज़ों को, यू हैव जस्ट कंप्लीटिंग योर सिलेबस, वी यू आर जस्ट doing the answer writing practice, okay, where you are updated with the newspapers, with the current affairs, fine। तो अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको देख करके मज़ा आएगा कि हाँ, नाउ द वर्ड्स आर व्हाट आर, क्या बोल सकते हो, अनसुना नहीं है, ठीक है, मतलब सुना हुआ है, ठीक है, वे मतलब कभी ना कभी तो आया ही है दिमाग में या चर्चा में, ठीक है। चलो। तो द मैंने पहले बोला, द न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ मे 1998 डू नॉट प्रमोट द न्यूक्लियर आर्मामेंट, ओके, एंड दिस सेट इंडिया अपार्ट फ्रॉम द अदर न्यूक्लियर वेपन स्टेट विच रिजेक्ट द ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, इंडिया को थोड़ा सा अलग करती हैं, किससे, अदर न्यूक्लियर स्टेट से, जिन्होंने क्या किया कि कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटी पर साइन करने से मना कर दिया, ठीक है। और क्यों मना किया, क्योंकि एक्चुअली वो ऐसा मानते हैं कि दे रिफ्यूज टू विजुअलाइज देयर सिक्योरिटी विदाउट द न्यूक्लियर वेपन, ओके, दैट मीन्स दे आर एक्सेप्टिंग दैट न्यूक्लियर weapons are essential, you can say are a need for the security purpose, ठीक है। तो उनका ऐसा मानना है। इंडियाज न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी इज मींट ओनली फॉर द सेल्फ डिफेंस, ठीक है। इफ यू आर जस्ट डेवलप्ड सम न्यूक्लियर वेपन, तो दैट मींट इज ओनली फॉर द सेल्फ डिफेंस एंड सीज ओनली टू इंश्योर दैट इंडिया सिक्योरिटी, ठीक है, हमने पहले बताया कि दे आर डेवलप्ड टू सीक द ओनली फॉर द इंडिया सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड द सॉवरेंटी आर नॉट थ्रेटेंड इन फ्यूचर, दैट मीन्स कि फ्यूचर में हमारे ऊपर कोई उंगली न उठाए, दैट्स वाई वी हैव जस्ट डेवलप्ड द न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअली nuclear research program of the India. So, if we are just talking about the what is the nuclear doctrine or nuclear policy of India, ठीक है। Nuclear doctrine, doctrine will also contain policy, okay। So, India's nuclear doctrine is based on the maintaining a minimum credible deterrence, ठीक है, based on maintaining minimum credible deterrence, minimum credible deterrence and and no first use, no first, okay। So these are the
these are the actually the key features of the what of the India's nuclear doctrine. The first is the minimum maintaining the minimum credible deterrence and the no first use. Okay. Minimum credible deterrence means that means जितना कम हो सके, ओके, उतना क्या क्रेडिबल डिटरेंस टू कम, किसी भी चीज़ को क्या करना, सोल्यूशन ढूंढना, ठीक है. तो द डिटरेंस ऑफ द सिक्योरिटी बाय द न्यूक्लियर armaments is supposed to a very supposed to maintaining a very minimum, okay, minimum credible, fine, okay. So policy as opposed to nuclear war, fighting or warning the doctrine, ठीक है. So India's nuclear doctrine is based on the maximum restraints in the use of nuclear weapons. Maximum restraints. दैट मीन्स कि अगर जब हद हो जाएगी किसी चीज़ को, किसी चीज़ की क्या हो जाएगी, जब हद कर दी जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो जब चीज़ें इनटॉलरेबल हो जाएंगी, ठीक, द मैक्सिमम रेस्ट्रेंट, बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी जब, इन दैट केस वी इंडिया विल यूज़ द nuclear weapon and also take the initiative that promote peaceful and more meaningful applications of the technology. That means कि India is always stand for the peaceful, okay, peaceful and meaningful application of the nuclear technology, ठीक है. और इसमें हम जब भी कभी बात करते हैं द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, we will just talk about the peaceful applications of the nuclear. हम कभी भी एटॉमिक बॉम्ब की बात नहीं करेंगे, ठीक है. we will just talk about the nuclear rate, okay. So here is India's nuclear doctrine is based on the maximum deterrence as you see this, ठीक है, and the absolute political control over the decision making and effective interfere between the civilian and military leaders in the management of its atomic quiver, okay. That means कि ऐसा नहीं है कि किसी आर्मी को या किसी आर्मी चीफ को ये पावर दी गई है कि वो क्या करे, इसका यूज़ कर सके. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिसीजन का रिजल्ट होगा कि जब इंडिया क्या करेगा, एक न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेगा, फाइन. तो दीज आर द एक्चुअली द न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम ऑफ इंडिया एंड द इंडियाज न्यूक्लियर, ठीक है. चलो अब हम बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है. तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बात करने के पहले उसका एक फिगर हम ड्रॉ करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, ठीक है. जस्ट मैम वो पीडीएफ इसमें नहीं लग पाएगी. Okay. So class, now we will talk about the what न्यूक्लियर रिएक्टर. हम देखें कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर हियर फॉर व्हाट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी, ठीक है. तो बिफोर स्टार्टिंग द न्यूक्लियर रिएक्टर वी हैव टू जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम, ठीक. थोड़ा स्पीड में करेंगे इसको डायग्राम को.
Here is some chambers are available. ठीक है, बहुत सारे क्या हैं यहाँ पे चैम्बर्स हैं. इन चैम्बर्स का सबका अपना अलग अलग क्या होता है, यूज़ होता है. क्लियर. Some chambers are considered as the reactor vessels. Some are considered as the steam generator. समथिंग ऐसा कुछ. ठीक है. तो इतना टाइम इसमें लग रहा है, बस इसी में लग रहा है, बाकी वैसे समय नहीं लगेगा ज़्यादा. तो जल्दी से कर लेंगे अपन. ठीक है. दिस इज द. So this one is completed. The complete structure is here. ठीक. ओके. तो नाउ थोड़ा सा इधर नाम लिख देते हैं अपन. ठीक है. दिस इज द.
कंटेनमेंट स्ट्रक्चर। ओके, अभी नाम लिखिए आप, बाकी क्या होता है, व्हाट इज द कंटेनमेंट स्ट्रक्चर, वी विल डिस्कस। ओके, हियर इज सिंगल containment structure, and here is moderator, ठीक है, this is also called the control rod, control rod, clear? Here is this chamber, this one, ठीक है, this is considered the reactor vessel. Okay, reactor vessel, this is the pump, and this one is the steam generator. Okay, steam generator. Here is the pump too, ठीक, pump is here also. This one is the steam line, ठीक, this is the turbine, the generator, and the cooling water. This is the cooling tower, condenser is here. Okay, कुछ यहाँ पे ऐसे वाटर का मूवमेंट होगा, लाइक दिस, देयर इज पंप, इधर से ऐसे आएगा, ठीक है, and this actually this is the direction of water, direction of water, direction of steam, clear? That means the, sorry, these pipes are actually here, ठीक है, for the, it is providing actually the pathway for steam and the water as well, ठीक है, cooling water, this is the condenser. No, just a minute. Yeah. This is the actually general structure of a nuclear reactor, ठीक है, the general structure. What are the types of the nuclear reactor? ये फिगर केवल ये बता रहा है कि दिस इज अ न्यूक्लियर, ठीक है, क्लियर? चलो देखो, you can see here the structures and the several types of the chambers in it. Okay, this one, the larger chamber, is considered as the containment structure. Actually this containment structure is a, what is a concrete protecting wall, ठीक है,
ये क्या होती है? एक कंक्रीट प्रोटेक्टिंग वॉल होती है. अप्रॉक्स द यू कैन से the meters in meters the width of this concrete wall is in meters. ओके, बहुत मोटी एकदम क्या होती है? वॉल होती है. अब आपने देखा होगा व्हेन यू आर जस्ट सर्चिंग ऑन योर गूगल दैट द न्यूक्लियर रिएक्टर, यू कैन से कहीं भी न्यूक्लियर रिएक्टर हो, तो आपने बाहर से देखा होगा कि एक बड़ा सा एक चैम्बर बना होता है, राइट? द कंक्रीट चैम्बर. तो दिस इज द कंटेनमेंट स्ट्रक्चर. What is this? This is containment structure. In the containment structures, there are the two chambers actually. How many chambers? Two chambers. You can see this. The first one is the considered as the reactor vessels. Reactor vessels are the chamber where the reaction occurs. Okay, where the nuclear reaction occurs or started or begins. Clear? Okay. नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द एक्चुअली, यहाँ पे जो रेड आप देख पा रहे हो ना, रेड इन कलर, दिस इज द एक्चुअली फ्यूल. दैट मीन्स दिस वन इज द यूरेनियम. क्या हो सकता है? ये यूरेनियम हो सकता है. फाइन. एंड दिस यूरेनियम इज हियर एंड द रिएक्शन इज अकर्स एट दिस चैम्बर इन द रिएक्टर वेसल्स. सो देयर इज मॉडरेटर. क्या यहाँ पे? Moderators are here. Moderators, that means this is also also called the control rod. इसकी होती है control rod? These are the made up of cadmium. Okay, cadmium और graphite. ठीक, तो किसी की भी हो सकती हैं, या तो graphite rod हो सकती हैं या तो cadmium rod हो सकती हैं. And these control rod are responsible to control and to moderate the speed of the neutron. Okay, so this is actually responsible for the maintaining the speed of the neutron. ठीक है, इतनी बात क्लियर? ओके, you can see this. There is a what? There is a tube which is actually allowing the passing of the water. ठीक है, passing of the water through the reactor vessels with the help of pump. That means यहाँ से पंप क्या कर रहा है? वाटर ले रहा है, और वाटर को लेके वाटर को कहाँ पे भेज रहा है? इन द रिएक्टर वेसल्स. When the reaction is occurs, okay, when the reaction is occurs, और कौन सी रिएक्शंस होगी? जैसे हमने बताया था, यूरेनियम 92 235, ठीक है, एंड प्लस 0 and 1. It is resulting the beryllium 56 141 and plus krypton 36 92 and plus 200 mega electron volt energy. ठीक है, एनर्जी. दिस रिएक्शन इज अकर्स. क्लियर? यही रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे. फाइन. सो द एनर्जी इज जनरेटेड आफ्टर द fission of the uranium 235. ठीक, so energy is generated when the water is passing through this reactor. The water is absorbing the heat energy which is produced by the reaction, and water get warmed. ओके, वाटर क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा. ठीक, नाउ द वाटर इज रीच्ड हियर. ठीक है, एंड द वार्म्ड वाटर इज गोज टू द स्टीम जनरेटर थ्रू द ट्यूब. ठीक है, इसके थ्रू, एक ट्यूब्स के थ्रू कहाँ पहुँच रहा है ये? स्टीम जनरेटर में. ओके, नाउ हियर यू कैन सी वन अनदर पंप इज अलाउ the passing of the water in the steam generator chamber. ओके, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोल्ड वाटर जा रहा है इधर से. ठीक है, दिस इज द कोल्ड वाटर एंड दिस इज द बॉइल्ड वाटर, वार्म वाटर. बहुत ज़्यादा इसका हीट है. ठीक है, व्हेन द और ये कैसा एक, दिस इज द ट्यूब, मेटेलिक ट्यूब.
ओके, तो आप समझ सकते हो कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ दैट मेटेलिक ट्यूब, ठीक, आफ्टर पासिंग द वाटर फ्रॉम द रिएक्टर वेसल्स, ठीक है। चलो, अभी ये एकदम गर्म हुआ एंड इट रीच टू द स्टीम जनरेटर। हियर देयर इज अ contact of the normal water, or you can say the cold water, not completely cold but normal water, and when it comes in the contact of this tube, it is generated the steam। ये क्या जनरेट करेगा? फिर स्टीम जनरेट करेगा, ठीक है। नाउ द स्टीम इज जनरेटेड, ठीक है। So here you can see the steam is generated, and the steam generator chamber is allow the passing of the steam to the turbine, okay। और यहाँ पे जब ये स्टीम जनरेट हो रहा है तो हियर इज वेरी फोर्सफुली स्टीम इज जनरेटेड, ठीक है, वेरी फोर्सफुली स्टीम जनरेटेड। नाउ इट this steam is reached to the turbine, and turbine क्या होते हैं? What are the turbines? Turbines are actually, you can say, a large fan like mechanical structure, ठीक है। कैसे? बड़े बड़े फैन जैसे होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि देयर इज अ, आप कह सकते हो कि लार्ज ब्लेड्स आर इन द फैंस, ठीक है। एक मतलब क्या होते हैं? ब्लेड्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक। So here is steam is goes to the blade of the turbine, and this steam just started the rotation of turbine, ठीक है, just started the rotation of turbine। The amount of steam and the velocity of steam, ठीक है, the amount of steam as well as the velocity of steam is very high, or you can say a much amount of the steam is available with high velocity, ठीक है। and it is forcing the movement of the turbine, ठीक है, turbine इन अ, आप कह सकते हो कि बहुत ही स्पीड से इसको घुमाना स्टार्ट करता है, फाइन। सो नाउ हियर यू कैन सी द टर्बाइन इज जस्ट अटैच टू द मोटर जनरेटर। हियर इज द मोटर, ठीक है, एंड डायनमो इन इट, ठीक है, डायनमो इन इट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डायनमो? डायनमो इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए द डायनमो इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। यहाँ पे क्या लगे होंगे? डायनमो लगे होंगे, and the turbine is rotating very at very high speed, ठीक, बहुत तेजी से रोटेट होना स्टार्ट होता है, ठीक। and the dynamo is converting this mechanical energy into electric energy, and here the electric energy is generated and reached to the जो पावर स्टेशन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे पावर स्टेशन पे पहुँचेगा, और वहाँ से इस एनर्जी को क्या किया जाएगा? सर्कुलेट। अच्छा, यहाँ पे कुछ आगे जो डायग्राम, सॉरी, जो स्ट्रक्चर दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, उसको समझो आप। व्हेन द स्टीम इज कमिंग इनटू द कांटेक्ट ऑफ द टर्बाइन, इट अलाउज अ फोर्सफुली रोटेशन ऑफ द टर्बाइन। चलो, ये इधर तो इलेक्ट्रिक जनरेशन हो रहा है। तो नाउ द स्टीम इज गेट कंडेंस्ड, यू कैन से द स्टीम ऊपर से आ रहा है बहुत फोर्सफुली, द स्टीम इज सेटल डाउन, दिस इज सेटलिंग डाउन, ठीक है। तो यहाँ से स्टीम क्या हो रहा है? नीचे की तरफ क्या हो रहा है? बैठ, ठीक। सो दिस इज द एक्चुअली कंडेंसर चैम्बर। व्हाई दिस इज कंडेंसर? बिकॉज a cooling tower, ठीक है, a cooling tower is allow to pass the cool water, or you can say the cold water, for the cooling of that steam, ठीक है। आप देख सकते हो the cold water is passing to the tubes from the cooling tower to the condenser,
ओके। यानी यहाँ पे इधर से पास होगा और यहाँ व्हेन द स्टीम इज कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ द कूल वाटर या कोल्ड वाटर, द steam is condensed. Okay, and here is the condensed water is formed at the bottom of the condenser. ठीक है, now this water, this condensed water is again pumped by the pump to the steam generator. ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे ही क्या होती रहती है, इधर से चलती रहती है। ठीक, तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर एंड द जनरल फंक्शन ऑफ द what ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, ये ऐसा फंक्शन करता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक, एक है स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब। ओके, one more thing is here, when we will discuss about the types of the reactor। ठीक है, अभी बात करने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। देन ऑल दी थिंग्स आर सेम। ठीक है, बस उसके कुछ प्रिंसिपल जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे ही क्या, ऐसा ही चैम्बर होगा वहाँ पे। दिस रिएक्टर वेसल आर इज ऑल्सो देयर, स्टीम जनरेटर इज ऑल्सो, स्टीम इज हियर, कूलिंग टावर इज हियर। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें ऐसे क्या होंगी, वर्क करेंगी, बस इसके कुछ प्रिंसिपल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, नाउ द टाइप ऑफ द रिएक्टर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ द रिएक्टर, वी विल फाइंड दैट देयर इज एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ द रिएक्टर। द फर्स्ट वन इज द लाइट वाटर रिएक्टर एंड सेकेंड वन इज द हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, लाइट वाटर रिएक्टर एंड हैवी वाटर रिएक्टर क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। लाइट वाटर रिएक्टर जो होते हैं, इन द लाइट वाटर रिएक्टर देयर इज वाटर पासिंग, so in this process there is allow of the light water। ठीक है, but in case of the heavy water, the heavy water is passing through it। ठीक है, the heavy water passing through it। clear? okay। चलो, तो थोड़ा थोड़ा इसमें हम क्या करेंगे ना, कुछ लाइट वाटर रिएक्टर, कुछ हैवी वाटर रिएक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या होते हैं हैवी वाटर रिएक्टर, क्या होते हैं लाइट वाटर रिएक्टर। एंड आफ्टर दैट we have to also discuss about the what about the fast breeder reactor। ठीक है, तो what is the fast breeder reactor, ठीक, करते हैं उस पर बात। तो we are just differentiate the types of the reactor, you can differentiate between the light water reactor and the heavy water reactor। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं रफ कर रहा हूँ, डोंट वरी, मुझे सारी चीज़ें रिकॉल है, मैं उसमें बात कर लूँगा, फाइन, क्योंकि अभी मुझे इसमें बहुत कुछ लिखना है। चलो ओके, तो हियर इज द टाइप ऑफ रिएक्टर। अच्छा, वन मोर थिंग, इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, the question from the defense and technology is directly asked about the reactor, especially like अगर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि what is the fast breeder reactor, okay, and how it is more useful in reference of the Indian nuclear research। ठीक है, तो उसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का क्या फंक्शन हो सकता है, और स्पेशली इंडिया के बारे में क्यों पूछा है। ठीक है, क्यों पूछा है उस पर बात करेंगे अभी। व्हाट इज द एक्चुअली यूज, एक्चुअली फंक्शन और एप्लीकेशन ऑफ द ब्रीडर रिएक्टर।
ठीक है. ब्रीडर रिएक्टर्स आर दोज रिएक्टर्स विच आर एक्चुअली अलाउइंग द फॉर्मेशन ऑफ द फिजाइल मटेरियल फ्रॉम नॉन फिजाइल मटेरियल. ठीक है. फिजाइल मतलब कि जिसमें न्यूक्लियर फिजन हो सके. ठीक, हमने पहले ही बोला था कि नॉट ऑल द आइसोटोप्स आर फिजाइल इन नेचर और रेडियो एक्टिव इन नेचर. ठीक है. सम ऑफ देम आर द फिजाइल. ठीक है. तो ब्रीडर रिएक्टर इज एक्चुअली अलाउइंग द फॉर्मेशन ऑफ द फिजाइल मटेरियल. ठीक है. चलो देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स में. द फर्स्ट वन इज द लाइट वाटर रिएक्टर. ओके. लाइट वाटर रिएक्टर्स are actually ordinary water. These are the using ordinary water. Ordinary water. And when we are just talking about the heavy water reactor, so we are using the heavy water. Heavy water क्या होते हैं? D2O समझते हो? इसी को heavy water बोला जाता है. H2O को क्या बोला जाता है? The normal water, ordinary water. Okay. And D2 is the heavy water. Clear? We are just talking about the isotopes of the hydrogen, right? तो हाइड्रोजन में आइसोटोप्स हमने देखा क्या क्या था? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड द ट्राइटियम. ओके. so when the isotope of the hydrogen, deuterium, is react with the, you can say, the form the compound with the oxygen, then this is considered as the heavy water. ओके. तो हैवी वाटर का यूज हैवी वाटर रिएक्टर में करते हैं. ठीक है. चलो देखो. तो हियर इज सम सब टाइप्स ऑफ द, यहाँ पे कुछ सब टाइप्स दिए गए हैं इसके लाइट वाटर रिएक्टर्स के. ठीक है. लाइट वाटर रिएक्टर्स आर सम ऑफ टाइप्स लाइक द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर. ठीक है. लाइक प्रेशराइज्ड water reactor. Clear? Next is here. Next one is the boiling water reactor. Boiling water reactor. ठीक है. नेक्स्ट वन है सुपर क्रिटिकल वाटर रिएक्टर. क्या होते हैं भी इन सब के बारे में मुझे पढ़ना भी है. ठीक है. सुपर क्रिटिकल water reactor. Okay. And here is also in the light water reactor we will discuss about the next is the fast breeder reactor. Fast breeder reactor. And this fast breeder reactor is very important in reference of the what, in reference of the India. ठीक है. चलो अभी इसमें हम एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं. ये सारे रिएक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है. एक ओके. द फर्स्ट वन इज द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर. ऊपर लिख देता हूं मैं. प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर. ठीक है. देखो pressurized water reactor have the primary characteristics is the pressurizer. That means there is a pressurizer. Okay. That means the water which is reached into the reactor vessels. ठीक है. तो कैसा वाटर पहुंचेगा? प्रेशराइज्ड वाटर पहुंचेगा. देयर इज अ प्रेशराइजर. ठीक है. एंड स्पेशलाइज्ड प्रेशर वेसल्स. स्पेशलाइज्ड प्रेशर vessels. ठीक है. pressure vessels and which provide the expansion space for change in water volume
इन द रिएक्टर. ठीक है. एक्सपेंशन स्पेस को चेंज करने के लिए ये क्या करेंगे, वाटर को हम क्या करेंगे, प्रेशराइज. याद करो वेयर द यूरेनियम इज प्रेजेंट. ठीक है. और देयर वाज अ कंट्रोल रॉड इज आल्सो, तो वाटर वहां पे मूव कर रहा था. फाइन. सो इन द केस ऑफ द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स, ठीक है, द प्रेशराइज्ड वाटर इज पासिंग थ्रू द passing through the reactor vessels. ठीक है. And in which the primary coolant is water. ठीक है. The primary coolant is water, and this water is pumped under the high pressure. ठीक है. वही बात जो कह रहा हूं मैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कंटेनमेंट चैम्बर था ना. ठीक है. फिर यहाँ पे क्या था हमारा, सॉरी, ऐसा समझो आप, वी हैव जस्ट डिस्कस दैट देयर इज कंटेनमेंट चैम्बर. ठीक है. एंड इन विच हियर इज द रिएक्टर वेसल्स. फाइन. क्या था, रिएक्टर वेसल्स था. एंड हियर इज व्हाट, हियर इज यूरेनियम. ठीक है. यहाँ पे ऐसा कुछ समझा था हमने. एंड द वाटर इज पासिंग थ्रू दिस. ठीक है. एंड दिस वाटर इज रीच टू द वेयर, स्टीम चैम्बर. ठीक है. कहाँ पहुंचेगा, स्टीम चैम्बर्स में. ओके. सो द पासिंग वाटर. ठीक है. एंड लिसन वन मोर थिंग, ये जो वाटर यहाँ पे रिएक्टर वेसल्स में पहुंच रहा है ना, दिस वाटर इज ऑल्सो एक्ट एज अ कूलेंट. एंड कूलेंट क्यों, क्योंकि जो एनर्जी निकल रही है ना, इतनी ज़्यादा है कि अगर उसको कूल नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो द रिएक्टर गेट बर्स्ट. ठीक है. और आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे ऐसा एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे रिएक्टर क्या हो गया, रिएक्टर ब्लास्ट कर जाता है. ठीक है. तो अब ऑब्वियस सी बात है कि है तो ये भी एक तरीके का एटॉमिक बॉम्ब है. ठीक है. दिस इज ऑल्सो एटॉमिक, द सेम प्रोसेस इज अकर्स. ठीक है. सेम रिएक्शन इज अकर्स. बस अंतर सिर्फ इतना है कि वी आर जस्ट पासिंग द कूलिंग एजेंट. ठीक है. वी आर जस्ट पासिंग द कूलिंग वाटर. ठीक. तो यहाँ पे जो वाटर जाएगा वो कैसा रहेगा, प्रेशराइज्ड होगा. कैसा वाटर, प्रेशराइज्ड होगा. ठीक है. चलो. एंड प्रेशर टू द रिएक्टर कोर वेयर इट इज हीटेड बाय द फिजन एनर्जी. ठीक. अब ये वाटर जो पहुंचा है ये हीट होगा, फिजन एनर्जी जो हीट मिल रहा है, ठीक है, उससे गर्म होगा ये. हीटेड वाटर देन ट्रांसफर इट्स थर्मल एनर्जी टू अ सेकेंडरी सिस्टम. ठीक है. वेयर स्टीम इज जनरेटेड. जैसे कि हमने बताया कि हियर इज वार्म्ड वाटर, इज हियर हीटेड वाटर, इज हियर रीच टू द स्टीम चैम्बर. ओके. एंड नाउ द स्टीम इज व्हाट, स्टीम इज फॉर्म्ड. ठीक. स्टीम इज जनरेटेड. ठीक. एंड द स्टीम इज गोज टू द टर्बाइन, एंड विच इन टर्न स्पिन्स एन इलेक्ट्रिक जनरेटर. अब वो वहाँ पे टर्बाइन क्या होगा, टर्बाइन मूव करेगा, फिर आगे वाली प्रोसेस सेम होगी. ठीक है. तो डायनमो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है. द प्रेशराइजर ऑल्सो सर्व एज अ मीन्स ऑफ प्रेशर कंट्रोल फॉर द रिएक्टर. ठीक है. जो प्रेशराइजर होता है वो प्रेशर कंट्रोल की तरह भी यूज किया जाता है. एंड इट कॉन्स्टिट्यूट द लार्ज मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स न्यूक्लियर पावर प्लांट. एक्चुअली in the all over world, when we are just talking about that which type of the reactor is using, so the majority is goes with this pressurized water reactor. That means कि मेजर कंट्रीज में अब ये कह सकते हो कि बहुत सारी कंट्री, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर एक्चुअली यूजिंग द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर. ठीक है. तो दिस इज अबाउट द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर. The next one is the boiling water reactor. Boiling water reactor. After the pressurized water reactor, this is the second most common reactor. This one is the second most common reactor. ठीक है. And
ऑल्सो अ टाइप ऑफ लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, हमने पहले ही बोला कि दिस इज ऑल्सो दीज आर द सब टाइप ऑफ द लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो मेन डिफरेंस जो बिटवीन द प्रेशराइज वाटर रिएक्टर एंड द बॉइलिंग वाटर रिएक्टर इज दैट इन अ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर द रिएक्टर कोर हीट्स वाटर, ठीक है, विच टर्न्स टू स्टीम एंड देन ड्राइव्स अ स्टीम टर्बाइंस। देखो यहाँ पे हमने बात किया था कि नॉर्मल रिएक्टर में, और यू कैन से इन द प्रेशराइज्ड रिएक्टर वाटर, द कूलिंग वाटर इज गोज टू द reactor chamber, or you can say the reactor vessel, ठीक है, where the core of the reactor vessel is heated, that water, and the water reach to the steam chamber where a cold water is comes to the contact of that heated water, ठीक है। now the water is changed into the steam, but in case of the boiling water, in case of the boiling water reactor, जो वाटर कोर में पहुंच रहा है ना, इट इज एक्चुअली हीटेड ओवर द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, एंड इट स्टार्टेड द बॉइलिंग, ठीक है, इट स्टार्टेड द बॉइलिंग। सो दिस वाटर इज जनरेटेड द स्टीम इटसेल्फ, ठीक है। तो यही वाटर क्या हो जाएगा, स्टीम जनरेट करेगा, एंड दिस स्टीम is reached to the turbine and leading the spin and generating the electricity, ठीक है। दैट मीन्स कि वहां पे इन केस ऑफ द बॉइलिंग वाटर रिएक्टर वी आर जस्ट नेग्लेक्टिंग अ स्टीम चैम्बर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, स्टीम चैम्बर को बिल्कुल क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कहां पर, दिस बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में। और प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में क्या था कि जो वाटर गर्म हो रहा था वो दूसरे वाटर को क्या कर रहा था, हीट करके उसकी स्टीम को जनरेट कर, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ठीक है। ओके, नाउ हियर मेजर एडवांटेज इज हियर अबाउट द boiling water reactor over the pressurized water reactor is that the overall thermal efficiency is greater than that of pressurized water reactor because there is no separate steam generator और heat exchanger। देखो obvious सी बात है कि यहाँ पे जो हम हीट चेंज कर रहे थे ना, एक्सचेंज हो रहा था बिटवीन द टू वाटर इन केस ऑफ द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, तो हियर इज द लॉस ऑफ द हीट ऑल्सो, ठीक है। हीट क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, बट here is actually the thermal efficiencies occurs. Why thermal efficiency? Because जो वाटर कूलिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एंड व्हेन द कूलिंग दिस वाटर इज रीच्ड इनटू द रिएक्टर चैम्बर, रिएक्टर वेसल्स, ठीक है, तो यही वाटर क्या हो जा रहा है, डायरेक्ट हीट में चेंज हो रहा है, ठीक है। सो देयर इज थर्मल एफिशिएंसी। तो ऑब्वियसली ये वेरी मच अंडरस्टूड दैट कि ये कैसा होगा, एक थर्मल एफिशिएंट होगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें बर्बाद नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज द बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, एंड कंपैरेटिवली जो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर था उसमें एक बॉइलिंग उसमें एक स्टीम चैम्बर था, ठीक है, बट दिस बॉइलिंग वाटर रिएक्टर इज अवॉइडिंग अ सेपरेट स्टीम चैम्बर, ठीक है। वाई? बिकॉज द वाटर गोज टू द रिएक्टर वेसल्स is converted into the steam itself, ठीक है, बात क्लियर है। चलो the many variants over developed like the advanced boiling water reactor, ठीक है, जैसे इसमें बोला है इसके बहुत सारे क्या हैं, वर्जन अवेलेबल हैं इसके बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स के, लाइक एडवांस्ड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, दिस इज known as the ABWR, Advanced Boiling Water Reactor, ठीक है। The next one is like the Simplified Boiling Water Reactor, Simplified
बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक है, सिंप्लीफाइड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। यू कैन से एक और भी है यहाँ पे, ESBWR, नथिंग, दिस इज द इकोनॉमिक, E is stand for here economic, so economic simplified boiling water reactor, okay, etc. So these are the variants of the what, variants of the boiling water reactor, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द अनदर रिएक्टर, ठीक है, एंड इस रिएक्टर को बोलते हैं सुपर क्रिटिकल वाटर रिएक्टर, ठीक है, सुपर क्रिटिकल वाटर रिएक्टर, ठीक है। एक्चुअली ये दिस इज मोस्टली डिजाइंड एज अ लाइट वाटर रिएक्टर, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ द लाइट वाटर रिएक्टर, बट दिस इज ऑपरेट्स एट अ सुपर क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, सुपर क्रिटिकल प्रेशर विच इज मोर देन द 22.1 मेगा पास्कल, ठीक है, 22.1 MPa, ठीक, that means what is the critical, you can say the critical pressure. Actually the term critical refers to the critical point of water, not the concept critically of reactor. एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो critical word आ रहा है, ठीक है, this is not actually denoting that the reactor is critically designed, नहीं, actually this is here stand for the critical point of water, ठीक है, this is for the, just a second, this is for the critical point of water। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, कोई बताए कमेंट में अगर किसी को पता हो कि व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट। अभी पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स। देखो critical point of water is actually means that the point of temperature with pressure, ठीक है, ठीक है, the point of temperature with pressure at which the all the three stages of water exist, ठीक है, simultaneously, all the three stages of water exist simultaneously, that means कि उस समय वाटर लिक्विड भी होगा, सॉलिड भी होगा, मतलब आइस भी होगा, एंड गैस भी होगा, स्टीम भी होगा, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज कंसिडर एज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द वाटर। एक्चुअली इन दिस सुपर क्रिटिकल वाटर रिएक्टर, water heated in the reactor core become a सुपर क्रिटिकल फ्लूड, ठीक है, जब वो हीट करेगा तो हीट होने के बाद इट बिकम्स द सुपर क्रिटिकल फ्लूड above the critical temperature of 374 degree Celsius. That means कि when the water is heated, the temperature is above the 374 degree Celsius. Clear? Actually transitioning from a fluid more resembling liquid water to fluid more resembling saturated steam, ठीक है, दैट मीन्स कि इन दिस कंडीशन जो वाटर लिक्विड की तरह दिख रहा है, ठीक है, दिस इट विल बी, या ये कह सकते हो दिस इज मोर रिजेंबलिंग द सैचुरेटेड स्टीम, ठीक है, जब कोई भी स्टीम सैचुरेट हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट सैचुरेट हो जाता है,
तो इट्स लुक लाइक अ लिक्विड और फ्लूइड, ठीक है। तो एट दिस condition in the supercritical water reactor, the water is becomes a fluid which is resembling to the saturated vapor or steam, ठीक है। And this steam can be used to, this steam can be used to what, you can say in a steam turbine actually, ठीक है। तो ये स्टीम यहाँ पे जो बनेगी इसको यूज करेंगे किस चीज़ के लिए, स्टीम टरबाइन के लिए। इसका डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड जब ये वेलोसिटी के साथ जाएगा, ठीक, तो हमें पता है कि जब कोई हैवी चीज़ बहुत वेलोसिटी के साथ जाता है तो इट विल प्रोवाइड द मोर एनर्जी, ओके। इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और जब ये वेलोसिटी के साथ जाएगा तो क्या होगा कि ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा क्या देगा, फोर्स प्रोवाइड करेगा फॉर द स्पिनिंग ऑफ द टरबाइन फैंस, ठीक है। तो दिस रिएक्टर इज कंसिडर्ड एज द सुपर क्रिटिकल वाटर रिएक्टर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। सेकेंड वन इज द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। एक्चुअली अब देखो यहाँ पे जैसे ये नाम दिया गया है कि व्हाट इज द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक। We know that uranium have the isotopes like the uranium 233, uranium 235, uranium 230. If we are just talking about the what is the portion of finding, you can say the, क्या बोल सकते हो उसको, the what is the portion of the natural fissile uranium in the nature. So we find that if we are just talking about the 100% of uranium, then out of 100%, the uranium 238 is find the 99.3% of all natural sources. कितने, 99.3%, ठीक है। दैट मीन्स कि ओनली 0.7% फिजाइल यूरेनियम इज प्रेजेंट इन नेचर। आई बात समझ में, कितने, केवल 0.7%। दिस इज द 0.7%, ठीक है। कैसा यूरेनियम है, फिजाइल यूरेनियम है, ठीक। अब ब्रीडर रिएक्टर इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर दैट एक्चुअली जनरेटिंग, you can say it generates fissile material, then it consumes because it is high neutron economy, ठीक है। दिस इज द हाई न्यूट्रॉन इकोनॉमी। देखो जब भी कभी आइसोटोप्स को हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, इसमें इन द फिजाइल आइसोटोप्स, ओके। नॉर्मल आइसोटोप्स को चेंज करना है किसमें, फिजाइल आइसोटोप्स में। तो वी आर जस्ट यूजिंग द न्यूट्रॉन, ठीक है, टू कन्वर्टिंग अ नॉन फिजाइल आइसोटोप इनटू फिजाइल आइसोटोप, ठीक है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज एक्चुअली यूजिंग द यूरेनियम 238, ठीक है। इट विल यूजिंग द यूरेनियम 238, ठीक है। तो यूरेनियम 238 को यूज करेगा ये एंड बाय यूजिंग द यूरेनियम 238 it is actually creating the uranium 235, uranium 235 and plutonium 239, ठीक है, 239।
38 39, एक सेकंड कुछ, हाँ ठीक है। देखो, एक चीज आप ध्यान रखिए, अल्फा एंड बीटा, देयर इज टू रेडियो एक्टिव, आप कह सकते हो रेज पार्टिकल्स, ठीक है। तो जब भी कभी किसी भी एटम से, ठीक है, कोई अगर एक अल्फा रिमूव आउट हो जाता है, तो अल्फा इज रिजेंबलिंग टू द हीलियम, तो दैट मीन्स 2 अल्फा 4, दिस इज द, ये क्या है, ये डिनोट करता है इसको, राइट। अच्छा, अब बीटा इज लाइक अ व्हाट, इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो बीटा हमेशा कैसा 1 को शो करेगा, दैट मीन्स इसका एटॉमिक क्या होगा, सॉरी न्यू, हाँ, तो इसका एटॉमिक वेट 1 होगा, लेकिन इसका एटॉमिक वेट 4 होगा, हीलियम जैसा, ठीक। किसी भी एलिमेंट से अगर हम, इफ यू आर जस्ट रिमूविंग अ सिंगल अल्फा पार्टिकल from an atom, so it will leads, there is a decay of the two digit in their atomic number and 4 digit in their mass number, मतलब कि अगर उसमें से निकलेगा दो, उसमें से इधर ये कम हो जाएगा और 4 ये कम, ठीक है। बट अगर बीटा पार्टिकल अगर क्या होता है, निकलता है, ठीक है, तो क्या होगा, देयर इज एक्चुअली addition of 1 in the mass number, but no changes in the atomic number, no changes in atomic, ठीक है। एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि एटॉमिक मास में 1 प्लस का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। चलो, so here in the fast breeder reactor, the uranium 235 and the plutonium 239 can also sustain a chain reaction. The breeder reactor, while using the plutonium as a fuel, can produce more plutonium 239, ठीक है। अगर ये प्लूटोनियम को यूज कर रहा है तो इट विल प्रोड्यूस द मोर प्लूटोनियम 239 देन इट कंज्यूम्स बाय द कन्वर्टिंग नॉन फिजनेबल यूरेनियम 238, द प्रीडोमिनेट्स इन नेचुरल यूरेनियम 4, ठीक है। दैट मीन्स कह रहे हैं कि अगर ये नॉन फिजनेबल यूरेनियम 238 को यूज कर रहा है, इट विल प्रोड्यूस द यूरेनियम 235 एज वेल एज द प्लूटोनियम 239, ठीक है। विद द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, द चांसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन बाय यूरेनियम 238 आर इंक्रीज्ड, ठीक है, आर इंक्रीज्ड, and hence the reactor do not use a moderator to slow down neutrons, therefore are called the fast breeder reactor, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, ये इसके चांसेस हैं कि ये यूरेनियम 238, बाय द यूरेनियम 238 द न्यूट्रॉन्स गेट एब्जॉर्ब। अच्छा, जब यूरेनियम 238 इज हियर टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, तो देयर इज नो यूज ऑफ द मॉडरेटर, ठीक है, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि पहले से ही क्या हो जा रहे हैं, यूज्ड हो जा रहे हैं, ठीक। तो दिस रिएक्टर इज कंसिडर एज द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। चलो, नाउ हियर these are the actually सब types of the light water reactor, ठीक है। अभी हम बात करेंगे about the heavy water reactor। heavy water reactor, ठीक। The use of heavy water reactor as the moderator is the key to the
PHWR सिस्टम, ठीक है, PHWR, नथिंग, वहां पे लाइट वाटर था ना, हियर इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. Pressurized heavy water reactor, that means heavy water is using in the in this reactor as a moderator. ठीक है, किसकी तरह यूज किया जाएगा ये? हैवी वाटर इज हियर एज अ moderator is here for slow down the neutrons. ठीक है, for slow down neutrons. And here the natural uranium used as fuel in the form of the ceramic. देखो, actually in the nature the ceramic UO2 is found as a natural uranium ore. ठीक है, ये क्या है? दिस इज द ore of the uranium UO2. ठीक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सिरेमिक. क्या बोलते हैं इसको साहब? दिस इज ऑल्सो नोन एज द ceramic. Okay, so this ceramic is used by the PHWR. Clear? So here heavy water is used as moderator and the coolant, and PHWR can use natural uranium and other fuels and does so more efficiently than light water reactor. ठीक है, these are the actually more efficiently. ठीक है, in which case? By in the case of using the natural source, or you can say the using natural uranium. कैसा यूरेनियम? नेचुरल यूरेनियम. ठीक है, मोर एफिशिएंट. ओके, क्योंकि हमें पता है क्या कि इन द नेचर देयर इज 99.3%. ठीक है, द यूरेनियम 238 इज फाउंड विच इज नॉन फिजाइल इन नेचर. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वॉज जनरेटेड बाई अ न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द दिसंबर 20 1951 इन यूएस. बोला जाता है इन 1951 दिसंबर. ठीक है, दिसंबर 1951 by US the electricity was generated first time by using the nuclear reactor. ठीक है, and on June 1954 the first nuclear power, world's first nuclear power plant to generate electricity for power grid started operation at USSR Obninsk. ठीक है, तो यूएसएसआर का एक शहर है ओबनिंस्क. क्या बोल सकते हैं उसको? This is the city of the USSR, Obninsk. Okay, so in the year of 1954 the first nuclear power plant to generate the electricity for power grid. ठीक है, and the world's first commercial scale power station. ठीक है, कौन सा commercial power scale station था? This is the Calder Hall in England. ठीक है, operated in the on the October 17 1956. ये पहला कॉमर्शियल स्केल का पावर स्टेशन, द फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल पावर स्टेशन, पावर. ठीक है, कहाँ पे? 1956 इन द इंग्लैंड, इन इंग्लैंड. क्लियर? सबसे पहले कहाँ पे जनरेट किया गया? 1951 इन यूएस, एंड आफ्टर 3 years इन द 1954 द फर्स्ट, आप कह सकते हो वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ पावर ग्रिड. ठीक है, एंड द इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्केल पावर प्लांट, so it is started in the 1956 in the England. Clear? Okay. So these all are the nuclear reactors. ठीक है, चलो. Here is some
न्यूक्लियर ट्रीटीज हियर, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियर ट्रीटी हैं। ठीक, दो न्यूक्लियर ट्रीटी हैं, इस पर बात करके हम ये चैप्टर आज यहीं पे फिनिश करेंगे। ठीक, ये जितना भी टाइम लगेगा हम ये चैप्टर फिनिश करके क्लास भी आज ओवर करेंगे। ठीक है, एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रीटी। ठीक है, so here is some nuclear treaties like the NPT. NPT. Okay, this is Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. NPT is for the Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons. Okay, this is also known as the nuclear non-proliferation treaty. Okay, also known as the nuclear non-proliferation treaty. Clear? Actually, this treaty is signed in the 1st July 1968. ठीक है, signed in 1st July 1968. 1968, and this, after 2 years, this is effective in 1970. ठीक है, 68 में साइन किया गया, 70 में क्या है, इफेक्टिव आया। एंड टुडे 190 प्लस 1 कंट्रीज इज हियर, दैट मीन्स टोटल कंट्रीज 190 प्लस 1 कंट्रीज। ठीक है, एंड इंडिया इज नॉन सिग्नेटरी कंट्री। ठीक है, इंडिया इज, दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ द एनपीटीज। ठीक है, तो इंडिया इज नॉन सिग्नेटरी कंट्री ऑफ एनपीटी, मतलब कि हियर इज 190 प्लस 1 कंट्री इज द सिग्नेटरी कंट्री ऑफ द एनपीटी। ठीक है, एंड इंडिया इज नॉन सिग्नेटरी। Apart from India, the Israel, North Korea, Pakistan, South Korea are also the non-signatory country. ठीक है, so what was the actually objective of this NPT? The objective is to prevent the spread of the nuclear weapons. ठीक है, and weapons technology. ठीक है, nuclear weapons and as well as nuclear weapons technology, to promote the cooperation in the peaceful uses. ठीक है, पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू फर्दर द गोल ऑफ अचीविंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। है ना, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत अच्छा लग रहा है। दैट मीन्स कि किसी भी तरीके का न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए क्या किया गया, बिल्कुल कंप्लीट प्रिवेंशन करने की बात की गई। ठीक है, किसी भी न्यूक्लियर वेपन को स्प्रेड होने की प्रिवेंशन की बात की गई। ओके, एंड द न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजीज प्रिवेंशन इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर वॉट, फॉर द प्रमोट द यूज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द पीसफुल यूज। ठीक है, पीसफुल यूज, एंड बात इसमें किया गया गोल ऑफ अचीविंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इंडिया को किसी बात से कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, बट हियर इज अ वर्ड, द वर्ड इज न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ओके, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। देखो ऐसा है साहब कि these treaties or
स्पेशली एनपीटी। एनपीटी जो है ना, जो क्या बोल सकते हो, पहले दुनिया के लोग, ये जो भी थे, मतलब कंट्रीज थी, राइट, दैट मीन्स द पावरफुल सुपर पावर्स कंट्रीज, ओके, दे आर एक्चुअली डिजाइन दिस एनपीटी, ठीक है, एंड दे सेट दैट कि बिफोर 1967, ठीक है, बिफोर 1968, 1967, द कंट्री who tested the nuclear bomb or nuclear weapons, ठीक है, nuclear weapons, they will be considered as the nuclear state, ठीक है, और उसके बाद आफ्टर दैट, ठीक है, द कंट्री हु टेस्टेड द न्यूक्लियर वेपन्स, जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किया, उनको क्या करना पड़ेगा, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, मतलब क्या बोलना पड़ेगा, मतलब खराब हटा देना पड़ेगा, ठीक है, दैट मीन्स कि उनको डिसआर्मामेंट करना पड़ेगा, किसका, न्यूक्लियर वेपन्स। बस किस, ये एक पॉइंट जो है, इट इज एक्चुअली showing the partiality, or you can say this point is actually discriminatory in nature, okay. Three pillars are here of this npt, like the first is the non proliferation. The pillars of the npt is, first is the non proliferation, the second one is the disarmament, ठीक है, second one is the disarmament, and third one is the right to peacefully use the nuclear technology, ठीक है, right to peacefully use nuclear technology। इन्होंने बोला कि our objective, the objective of the NPT is the non proliferation, ठीक है, non proliferation of the nuclear weapons, and we are just talking about the disarmament, nuclear disarmament, and the member of the NPT, you can say the NPT signatory country, have given the right to peacefully use of the nuclear technology, ठीक है, उन्होंने बोला जो कोई भी एनपीटी पे साइन करेगा, उसको पीसफुल यूज के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या किया जाएगा, उसको राइट दिया जाएगा उस चीज वो यूज, ठीक है। So here is some points like the each nuclear weapon state undertake not to transfer to any recipient nuclear weapon or other nuclear explosive devices, and not to assist any non-nuclear weapon state to manufacture or acquire such weapons or devices. That means कि who the country who is not a signatory of the NPT, okay, so in that case the nuclear weapon state would not provide the technologies, the nuclear weapon state would not provide the facilities, not provide the weapons, not provide the explosive devices, and not assist any non-nuclear weapons as well to the state, to to the state, the नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ठीक है, दैट मीन्स कि जो भी एनपीटी के सिग्नेटरी कंट्री नहीं है, ठीक है, जो कि नॉन न्यूक्लियर नहीं हुए हैं, उनको न्यूक्लियर स्टेट किसी भी तरीके का एड प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ईच नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट अंडरटेक नॉट टू रिसीव फ्रॉम एनी सोर्सेस, ठीक है, nuclear weapons, any sources, nuclear weapons or other nuclear explosive devices, not to manufacture or acquire such weapons, not to receive any assistance in their manufacture। इन्होंने बोला कि जो भी एनपीटी साइन करके नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, ओके, दे not to, they do not undertake the any resources, any nuclear
weapons a nuclear explosive device, not to manufacture or acquire such weapon. ना तो वो बना सकते हैं और ना तो वो रख सकते हैं अपने पास. ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि बना नहीं रहे, बट अगर हमारा कोई बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, फ्रेंड नेबर कंट्री है या कोई भी फ्रेंड कंट्री है, तो वो अगर हमें देता है तो हम एक्वायर करें, तो एनपीटी का जो मेंबर होगा वो एक्वायर भी नहीं करेगा. फाइन. ओके. द थर्ड वन, each non-nuclear weapon state partly undertake to conclude an arrangement with the IAEA. ठीक है, with the IAEA. This is the International Atomic Energy Agency. Okay, this is the International Atomic Energy Agency for the application of its safeguard to all nuclear material. ठीक है, जैसे अगर उनके पास कोई न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, कोई प्रीमाइसेस है, ठीक, तो अगर किसी भी तरीके का कुछ पार्टिसिपेशन वो कर रहे हैं, तो they should make sure that firstly they should take in confidence the IAEA, the International Atomic Energy Agency. दैट मीन्स कि यहाँ से एक डेलीगेट्स आएगा, ठीक है, और वो आकर के क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे प्रीमाइसेस को, एग्जामिन करेंगे प्रोसेसेस को. ठीक है, किस चीज़ के लिए, किसी भी तरीके के न्यूक्लियर रिसर्च या न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए. ठीक है, या न्यूक्लियर प्रोडक्शन के लिए. ओके. नेक्स्ट वन इज राइट टू डेवलप द रिसर्च, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेस. ठीक है, अगर किसी भी तरीके का न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ होगा तो इट ओनली फॉर द पीसफुल पर्पजेस. कोई भी एटॉमिक बम डेवलप नहीं करे. फाइन. ओके. An exchange of equipments, materials and technologies for peaceful purposes. Yes, that means a NPT signatory country have right to exchange the equipments and materials and technology for the peaceful purposes. Okay, for the purposes of this treaty, a nuclear weapon state is one which has manufactured and exploded nuclear weapons or other nuclear explosive device prior to the 1 Jan 1967. Okay, that means 1st of January 1967 के पहले अगर किसी ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया था तो दे विल कंसिडर एज द न्यूक्लियर वेपन स्टेट. ओके, और उन्हीं को एक कंसिडर किया जाएगा कि दे आर द न्यूक्लियर वेपन स्टेट. ठीक, अगर किसी भी तरीके की कोई भी न्यूक्लियर सप्लाई, न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी तो इन्हीं NWS और यू कैन से द न्यूक्लियर वेपन स्टेट से ही क्या करना पड़ेगा, एड लेना पड़ेगा. बट दीज NWS will provide their aids to the NPT signatory member. Okay, not to every country. ठीक है. Okay. Establish the right to withdraw from the treaty giving 3 months prior notice. बोल रहे हैं कि अगर इस NPT से आपको अगर विड्रॉ करना है तो यू हैव टू गिवन द 3 मंथ प्रायर नोटिस. अगर कोई अगर मेंबर उससे जुड़ा हुआ है तो उसको 3 महीने पहले क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ, यस, नाउ आई एम जस्ट लीविंग द ट्रीटी. ओके, चलो. तो दिस इज द NPT about the nuclear non-proliferation treaty, or you can say the treaty on the non-proliferation of nuclear weapon. ठीक है. The next one is the next treaty is the CTBT. CTBT. Okay. This is the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Okay.
This is the treaty which is carried out by the United Nation, ठीक है, and UNGA. This is signed by the by UNGA, signed by UNG अरे, UNGA. This is the United Nation General Assembly, ठीक है, on 10th of September 1996. कब? 10th of September 1996. Okay, and CTBT is a multilateral treaty that bans all nuclear explosion. Okay, it that bans all nuclear explosions. Explosions that means कि अगर रिएक्टर वे में भी करना है तो नहीं कर सकते हैं. फाइन. That means controlled explosion will not allow. Even controlled explosion will not allow under the CTBT. Okay. And इन्होंने बताया कि दिस इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी दैट बैन्स ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर बोथ सिविलियन एंड द मिलिट्री पर्पज इन ऑल इन्वायरमेंट. दैट मीन्स कि इट is imposes the ban on the any types of the test, ठीक है, regarding the nuclear power. Either the tests are for the military purposes or civilian purposes, ठीक है. In any environment it is actually prohibiting the test of the nuclear energy, ठीक है. And 185 signatory countries are here, ठीक है. How much? 185 signatory countries are here, ठीक है. बोल रहे हैं कितने हैं? 185. And 170 ratified states. कितने? Here is 170 ratifiers state. Okay, ratifiers क्या होते हैं? That means some states are here which is actually want to sign on this, ठीक है. बट उनका कहना ये है कि देयर इज सम improvement, there is a need of some improvement in the provisions of the treaty. Okay, and after the improvement in the treaty we will sign on that particular treaty, ठीक है. उनको बोला जाता है कि अभी उन्होंने साइन नहीं किया है लेकिन उनको साइन करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद वो साइन कर सकते हैं. ओके, सो रेटिफाइड स्टेट्स दैट द नीड टू टेक द फर्दर एक्शन फॉर द ट्रीटी टू इंटर इनटू फोर्स. ओके, इंडिया इज ऑल्सो अ रेटिफायर कंट्री, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम द इंडिया, द चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, यूएस इज ऑल्सो रेटिफायर कंट्री, ठीक है. So CTBT prohibits the any nuclear weapon test, explosion or any other nuclear explosion anywhere in the world, ठीक है. वो पूरे वर्ल्ड में क्या करेगा? बिल्कुल. ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द CTBT, दिस इज द CTBTO, ठीक है, ensures treaty implementation and the provides state parties with a forum for consultation and the cooperation, ठीक है. तो ये मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है इट विल एक्चुअली रेगुलेट दिस ट्रीटी, ठीक है. अच्छा, इंडिया क्या है? इंडिया हैज टर्म द CTBT एज द डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है. इंडिया बोलता है कि दिस CTBT इज ऑल्सो अ डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, ठीक है. एंड ड्यू टू द सम फॉलोइंग रीजंस. इंडिया जो कुछ भी बात करता है तो ऐसे हम बात नहीं करता है, ठीक है. वी आर नॉट जस्ट लाइक पाकिस्तान. ओके, वी आर इंडिया. तो इंडिया जब भी ऐसे बात करता है तो इंडिया इज एक्चुअली गिविंग द रीजंस, ठीक है. रीजंस ऑन फॉर व्हाट? reasons for the discriminatory appearance or discriminatory nature of the CTBT, ठीक है. The points are here. It does not, some points are here. जैसे इंडिया ने बोला it does not talk about, it doesn't talk about disarmament,
disarmament, okay, about sorry, without disarmament, without which nuclear, without which nuclear arms rare cannot be contained. ओके, दैट मीन्स कि डिसआर्मामेंट की बात नहीं करता ये, ठीक है. ओके, विच इंडिया का ये पॉइंट है कि इट इज बैन ऑन द एनी टाइप्स ऑफ द टेस्ट, बट इट दिस CTBT इज नॉट टॉकिंग about the disarmament. Okay, US, Russia and China have the already enhanced their nuclear stockpiles. That means उसका कहना ये है कि like US, Russia and China, okay, they have already क्या कर चुके हैं ये, they have already enhanced their the nuclear stockpile. Okay, इनका जो न्यूक्लियर स्टॉक है, ठीक है, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल जो है ये ऑलरेडी कैसा है, इन्हांस्ड है. दैट मीन्स कि अगर हम बात करें इन रेफरेंस ऑफ द US, तो मोर देन 3000 न्यूक्लियर वेपन्स हैविंग US. ओके, इसके पास कितने, 3000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन. रसिया के पास भी ऐसे 2700 न्यूक्लियर वेपन, ठीक. चाइना के पास भी ऐसे 2700 न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक. एंड इंडिया के पास कितने हैं, पाकिस्तान से भी कम है, ठीक है. तो इंडिया का कहना यह है कि दे हैव ऑलरेडी इनहांस देयर न्यूक्लियर स्टॉक पाइल. सो प्लीज, इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिसआर्मामेंट, तो इट शुड बी कंप्लीट डिसआर्मामेंट. अगर कंप्लीट नहीं होता है तो डिसआर्मामेंट कैसा हुआ, कंप्लीट डिसआर्मामेंट होता ही नहीं है. एंड CTBT इज एक्चुअली नॉट टॉकिंग अबाउट द डिसआर्मामेंट. वो केवल ये बोल रहा है कि अब आगे फर्दर किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं होगा. अच्छा, जो हो चुका है उसका क्या फिर, राइट. द पॉइंट इज वैलिड. That means it's okay that no further test of the nuclear reactions or nuclear explosions in any types of environment, either it is for the civilian peaceful purposes or for the military purposes to develop a nuclear weapon. It's okay. But जो पहले हो चुके हैं उनका क्या, वो तो उनके पास ऑलरेडी है, ठीक है. तो वो दूसरों के ऊपर तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि क्या बना के रखेंगे, ठीक. तो इट इज ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिव इन द फ्री सेंस. हाँ, नाम तो इसका देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि इट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव इन द फ्री सेंस, ठीक है. नाम में तो आपने लिख दिया कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी. ओके, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव, बट इन रियल इज इट कॉम्प्रिहेंसिव? नो, दिस इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव इन सेंस. एंड सिंस इट अलाउज सब क्रिटिकल टेस्ट एंड द कंप्यूटर सिमुलेशन ऑफ टेस्ट. ओके, इन्होंने ये बोला कि अगर किसी भी तरीके का अगर टेस्ट करना है तो आप कंप्यूटर पे आप टेस्ट कर सकते हो. दैट मीन्स कि यू कैन डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑन द कंप्यूटर, नॉट ऑन द ग्राउंड. अच्छा, मतलब कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको बनाने में कितना टाइम लगेगा, फिर वो तो तुरंत बन जाएगा. अगर आप कंप्रिहेंसिव बैन कर रहे हो, फिर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंप्रिहेंसिव बैन, तो कंप्रिहेंसिव इज इंक्लूडिंग all types of the ban in any environment and in any format as well. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ग्राउंड लेवल पे आप बोल रहे हो कि कोई टेस्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आप कोई कंप्यूटर सिमुलेशन टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, टेस्ट कोई कंप्यूटर सिमुलेशन करना चाहते हैं, तो यू कैन डू. तो नो, तो दिस इज आई थिंक क्या बोल सकते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, ठीक है. एंड एक्चुअली दिस CTBT, इंडिया तो बोलता है कि CTBT बनाया ही क्यों है. इफ यू आर नॉट जस्ट प्रूविंग योर, क्या बोल सकते हैं उसको, योर वर्ड्स, ओके, योर फुल फॉर्म ऑफ दैट CTBT, द कॉम्प्रिहेंसिव, द वर्ड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है. तो हाउ दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव, एंड इन रियलिटी इट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव इन द फ्री सेंस. ओके, so these are the some points at which the India has objection, ठीक है, the reference of the CTBT, ठीक.
इसलिए इंडिया क्या करता है, साइन नहीं करता है। किस पे, CTBT। वो बोल रहा है कि सारे पॉइंट्स पहले चेंज करो तो फिर हम साइन कर लेंगे। ठीक, अगर कंप्लीट डिसआर्मामेंट की बात करो तभी हम साइन करेंगे, बाकी हम ऐसे साइन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और साइन नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आराम से हम अपना, ठीक है, हम अपना रिसर्च करेंगे, हम अपना वैसे ही पहले हमने वी हैव ऑलरेडी इस्टेब्लिश आवर डॉक्ट्रिन। ठीक है, कि इंडिया इज़ हियर ओनली फॉर द पीसफुल पर्पजेस। ठीक है, एंड इफ वी आर जस्ट डेवलपिंग सम न्यूक्लियर armaments or weapons, so this is not a thrust area of the nuclear test. No, actually हमने इसलिए डेवलप किया क्योंकि वी हैव टू जस्ट मेंटेन आवर सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी, ओके, आवर बॉर्डर लाइन। ठीक, तो इसलिए हमने उसको क्या किया है, डेवलप किया है। तो हमारा ऐसा कुछ पर्पज़ नहीं है कि हमको उसी के लिए काम करना है। एंड अगर हम कर भी लिए हैं, डेवलप भी कर लिए हैं, तो नो फर्स्ट यूज़, वी हैव द डॉक्ट्रिन नो फर्स्ट यूज़। ओके, कभी भी किसी के ऊपर भी हम पहले यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडिया एंड इंडिया इज स्टैंड विद दिस। ठीक है। चलो कल इन द नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा इसमें कुछ रह जाता है, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। आज के लिए अभी इतना फिनिश, अभी इतने पे हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ मुझे कुछ पर्सनल काम की वजह से भी मुझे आज थोड़ा सा पहले छोड़ दूँ आपको, 10 मिनट 5 मिनट पहले। तो अभी इसमें कुछ ना, वी हैव टू जस्ट डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। उसमें वी हैव टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर विजन 2020। ठीक है, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसका विज़न क्या है, 2020 का क्या था। अभी न्यू तो विज़न नहीं आया, लेकिन 2020 का विज़न क्या था। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स और रिसर्च सेंटर्स के सम एटॉमिक रिएक्टर्स। ठीक है, जो कि यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, और वो रिसर्च सेंटर्स बने कैसे थे। फाइन, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। ठीक है, फ्रॉम टुमारो। तो ये कुछ 15-20 मिनट, हाफ एन आवर का रहेगा। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आई एम जस्ट थिंकिंग दैट कि ये तो IT स्टार्ट कर दें, या अभी हमारे पास नैनो और रोबोटिक्स भी बचे हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, रोबोटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो वेरी मच पॉसिबल दैट वी विल स्टार्ट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फ्रॉम टुमारो क्लास। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस रिमेनिंग, I think 1 or 2 topics is here. So after completing this remaining topics, we will start our information technology, IT and computers. ठीक है, so for today this is enough, and I'm just going to bind up for today. So thank you so much, thank you for your patience, and we will meet you tomorrow